اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں خاص موضوع پر گفتگو کرتے ہیں علماء کرام کے ساتھ. اور آج چونکہ یوم شہادت علی ہے تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ اور ان پر بات ہوگی، گفتگو ہوگی. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. اور ان کے ساتھ موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. اچھا جواد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں آج کا دن کس قدر تاریخ اسلام کا اہم ترین دن ہے؟ 21 رمضان مبارک یوم شہادت علی. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 21 رمضان مبارک ہے. حضرت مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا دن کہ مولائے کائنات کو آپ جانتے ہیں کہ 19 رمضان مبارک فجر کے ٹائم مسجد کوفہ کے اندر اولین و آخرین میں شقی ترین شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے حالت سجدہ میں ان کے اوپر ضربت لگائی، جس کے بعد 2 دن آپ اسی زخم کی کیفیت میں مبتلا رہے اور پھر 21 تاریخ کو آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں. اور جب آپ زخم کھا رہے ہیں تو اس وقت مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ جاری ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ظاہر مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے بہت سارے فضائل اور کمالات وغیرہ ہیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے کسی اور فضیلت کے اوپر جو ہے اس طرح فخر کا اظہار نہیں فرمایا، کامیابی کا اعلان نہیں فرمایا. لیکن جب آپ کی اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا جب وقت آیا، شہادت کا رتبہ جب آپ کو عطا ہو رہا ہے، تو اس موقع پر مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو رہا ہوں. چونکہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے جو افتخارات عطا فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی اور آپ کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی. بکعبہ ولادت بمسجد شہادت کثیرہ میسر نشد این سعادت. آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر اور آپ کی شہادت یہاں پر، اور اس اللہ کے گھر سے آنے اور اللہ رب العزت کے گھر سے جانے کے درمیانی وقفے کے دوران آپ کی پوری زندگی بھی اللہ ہی کے لیے گزرتی ہے. آپ اپنی زندگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارتے ہیں، یعنی جو عمل انجام دیتے ہیں اللہ رب العزت کی خاطر آپ انجام دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو بہرحال ایسا آپ کے لیے مصلحت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ بچپن ہی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو اپنے پاس لے جاتے اور آپ کی تعلیم اور تربیت اور پرورش کا انتظام فرماتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مکے کے اندر جو قحط کا موقع پیش آیا تھا اور وہ ایک ایسا بہانہ بن جاتا ہے کہ جس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں مولائے کائنات کو اپنے پاس لے جائیں اور اس کے بعد آپ کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا سونا چلنا پھرنا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ آپ کے ساتھ جو رہیں وہ مولائے کائنات علیہ السلام. روایات کے اندر بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ جب آپ مسجد غار ہرا کے اندر جب تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر بھی غار ہرا میں بھی مولائے کائنات آپ کے ساتھ جاتے تھے. اور ابتدائی وحی کے موقع پر بھی مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع آپ کو عطا فرمایا اور یہی وجہ ہے کہ جو اعمال آپ انجام دیتے ہیں وہ بھی جنگوں کے اندر اگر آپ دیکھ لیں اسلام کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں دیتے ہیں ان میں پیش مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام ہے. جتنی جنگیں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی تعداد آپ جانتے ہیں کہ 27 یا 28 ہے. صرف غزوہ تبوک ایک موقع ایسا ہے کہ جس موقع پر رسول اللہ نے آپ کو خود مدینہ منورہ کے اندر ٹھہرنے کا حکم دیا. اس کے علاوہ جتنے غزوات ہیں سب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہستی ہیں وہ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، اور صرف شریک نہیں ہے بلکہ جنگ کا کاسا پلٹنے والی شخصیت جو ہے مولائے کائنات کی ذات گرامی ہے. جنگ بدر جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے جس میں 70 کفار قریش کے لوگ مارے گئے. روایات کے اندر ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے ان 70 میں سے 35 لوگوں کو مولائے کائنات نے واصل جہنم کیا تھا. یہ حضرت مولائے کائنات کا جو ہے فضل. اور اسی طرح جنگ احد کے موقع پر آپ اگر دیکھ لیں تو جہاں بعد میں جب ایک موقع ایسا آ گیا تھا نا کہ جنگ مسلمان جیت گئے تھے، پھر بعد میں دوسری جانب سے دوبارہ آ کر جو حملہ کیا تو بہت سارے مسلمان جو ادھر ادھر گئے. حضرت مولائے کائنات وہ ہستی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے میدان کے اندر جو ہے موجود رہتے ہیں. اچھا خندق کے موقع کی اگر آپ بات کر لیں تو خندق کے موقع پر مولائے کائنات نے عمرو بن عبدود کو جو گرایا اور عمرو بن عبدود کا جو سر قلم کیا تھا، اس موقع پر آپ نے جس اخلاص کا اور جس اللہ رب العزت کے لیے للہیت کا مظاہرہ فرمایا تھا
उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी उस ज़रबत को कि जो आपने उनके ऊपर लगाए थे उसके बारे में इरशाद फरमाया था कि ज़रबत अली यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादत सकलैन। अली अलैहिस्सलाम की ये जो ज़रबत आज खंदक के मौके पर आपने लगाई है, ये सकलैन की इबादत से बेहतर है, जिन्न व इंस की इबादत से इसको बरतर करार दिया गया। बात दीगर रिवायत के मुताबिक अल्फाज मुख्तलिफ हैं, क़यामत तक आने वाली सारी उम्मत के लोगों की इबादतों से जो है उसको बेहतर करार दिया। ये असल में उस लिल्लाहियत की वजह से, उस इखलास की वजह से जो मौलाए कायनात अपने कामों को अंजाम देते हुए ये करते थे, क्योंकि आपका किसी के साथ कोई ज़ाती इनात नहीं होता था। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर किसी को मारते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर जो है अपने उमूर का अंजाम देते थे, तो अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम अता फरमाया था। तो आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब इतने ज़्यादा हैं, तमाम तक़रीबन उलमा सबका इत्तेफाक इस बात के ऊपर है, सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल और मनाक़िब जिस हस्ती के वो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़ात ग्रामी। अच्छा मुफ्ती साहब, इब्तिदाइया किस तरह से शुजाअत भी है, बहादुरी भी है, इल्म भी है, तक़वा भी है, सरकार का साथ देना भी है, अल्लाह के खौफ से रोने वाली आंखें भी हैं, इबादत में खुशू व खुशू भी है, सीखना सिखाना, फिर अपनी औलाद को तरबियत भी दी, और नसब भी ज़बरदस्त है। क्या कहेंगे सवाल? सुबहान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला ख़तर की। तो मैं शहनशाह विलायत अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन सैयदना मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू, जैसा कि आपने बयान किया कि बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर शादी तक एक एक लम्हा रसूलुल्लाह की मायत में गुजरता है। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत, आपका साथ, आपका प्यार, और इतना प्यार शबीर भाई, जितने साहिब औलाद सुन रहे हैं मुझ समेत जितने भी हैं, हम अपनी बेटी के लिए अगर दामाद चूज करेंगे ना, तो जो उन नौजवानों में सबसे अच्छा होगा, सबसे खूबसूरत होगा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, हम वो दामाद का इंतखाब करेंगे। अब सैयदा ज़हरा पाक शहजादी है रसूलुल्लाह, तो हुजूर ने कैसे दामाद का इंतखाब किया, और लाडली शहजादी के लिए मौला कायनात के अलावा कोई जोड़ बनता ही नहीं था। यानी मौला कायनात की जिंदगी मुबारक आप देखें, किसी जितने सहाबा हैं सबके नाम के साथ रदी अल्लाह ताला अन्हु लिखा जाता है, लेकिन मौला कायनात अली मुर्तज़ा वो सहाबी रसूल है कि आपके सलाम के साथ रदी अल्लाह ताला अन्हु भी लिखा जाता है, और करमल्लाहु वजहुल करीम भी लिखा जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उलमा ने फरमाया कि जब आप आंख खोली, जैसे डॉक्टर साहब ने बयान किया, आंख खोली तो सबसे पहले अगर कोई चेहरा हज़रत अली की नजर में आया है तो वो रसूलुल्लाह का चेहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला कायनात पर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कातिब वही भी हैं हज़रत अली, कई अहादीस के रावी भी हैं, और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक तरह से कहा जाए आजकल की लैंग्वेज में, मोहतात लफ्ज़ है लेकिन मैं बार बार इसको कवर करके कहा, सिक्योरिटी गार्ड भी थे, साथ साथ हिफाजत, मुहाफिज, कोई हमला करे तो रोकना है, करना है, उजरे के बाहर पहरा देना, वरना सरकार को तो सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो आजकल के दौर में समझाने के लिए, तो ये सारे काम साथ साथ कैसे कर लेते थे? कुछ पढ़ा है आप हजरात ने कि ये कैसी हस्ती रब ताला ने पैदा फरमाई? देखिए, मौला कायनात अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल में यही है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ ही होते थे। जब भी मक्की ज़िंदगी को आप देख लें, ठीक है, बल्कि नबूवत से पहले से आप अगर देख लें, जैसे कि अभी ब्रेक से पहले भी हम यही बात कर रहे थे, बचपन से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपने साथ रखा, और उसके बाद आपके ऐलान नबूवत के दौरान भी मक्का मुकर्रमा में भी आप साथ साथ हैं। जितनी मुश्किलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ रहे हैं, बाज़ रिवायात के अंदर ये मिलता है, आपने जो मुहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करके वो किया ना, इस हवाले से रिवायात में बात ये मिलता है कि मक्के के अंदर कभी कभी बाज़ जो मुशरिकीन के बच्चे होते थे ना, वो नऊज़ुबिल्लाह आप उनके उकसाने की वजह से आपके ऊपर पत्थर मारते थे, तो मौला कायनात अलैहिस्सलाम जाकर जो है रोकते थे, उन्हें रोकते थे और उनका मुकाबला फरमाते थे, यानी आपकी हिफाजत फरमाना और आपका साथ साथ देना। इसी तरह मदनी दौर में अगर आप देख लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हैं, ठीक है, जहाँ कहीं पर भी, चाहे वो जंग हो, चाहे कोई और मौका हो, ठीक है, हर मौके पर आपके साथ साथ हैं। यही वजह है कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सारे फ़ज़ाइल हैं। तो आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना और आपका उनके साथ बैठना, और बाकी काम भी करना, बाकी सारे उमूर को भी अंजाम देना, और इल्मी हवाले से भी जो आपने इशारा फरमाया, मौला कायनात का जो इल्मी मकाम था वो तो इतना बुलंद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है ना कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये एक है। दूसरे अल्फाज में भी है,
अना दारुल हिकमा व अलीयुन दारुल बाबुहा, मैं हिकमत का बाब हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इल्मी कमालात हैं, जो इल्मी चीज़ें हैं, वो भी दुनिया को हैरान कर देती हैं। आपका ये दावा भी बड़ा मशहूर है कि सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़ूदूनी, ठीक है, पूछ लो मुझसे, पूछ लो कब्ल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान से उठ जाऊँ। फिर उसमें यह भी है कि अगर तुम मुझे आसमान के बारे में अगर पूछोगे तो आसमान के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, ज़मीन के बारे में अगर पूछोगे तो ज़मीन के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। अहले तौरेत अगर मुझसे पूछें तो अहले तौरेत को उन तौरेत के मुताबिक जवाब दूंगा, अहले इंजील को इंजील के मुताबिक, और अहले कुरान को कुरान के मुताबिक मैं उन्हें जवाब दूंगा। तो ये सारे कमालात इल्मी लिहाज से मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दी आपने इख्तियार फरमाई थी, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उलूम थे वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को सिखाए थे। यही वजह है कि आज आप अगर देखें तो फरामीन और अक़वाल और नसीहतें और हिकमतें सबसे ज़्यादा तकरीबन मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मिलते हैं। एक किताब के जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो होनी चाहिए, नहजुल बलागा, ठीक है, नहजुल बलागा को अगर आप देख लें, मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खुतबात, आपके खतूत और इसी तरह आपकी मुख्तसर हिकमतों पर मुश्तमिल इंतहाई खूबसूरत किताब है। काफ़ी ज़बानों में तर्जुमा भी हुआ है। जी, बहुत सारी ज़बानों में इसका तर्जुमा है। उर्दू में भी अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन आलल्लाहु मक़ामहू ने इसका तर्जुमा किया हुआ है और इंतहाई खूबसूरत किताब है। इसमें अगर आप देखें मौलाए कायनात के फ़रामीन को, ठीक है, तो इंसान फ़साहत व बलागत के दरिया में गुम हो जाता है कि किस तरह फ़साहत व बलागत के साथ मौलाए कायनात जो है गुफ्तगू फरमाते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएँ अगर आप देखें कि जो दुआएँ आपने सिखाई हैं, तो उन दुआओं को पढ़ कर भी इंसान के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहब्बत का एक शौक़ और जज्बा पैदा हो जाता है। मैं ख़ास तौर पर नाज़रीन को ये कहूँगा कि दुआए कुमैल, आजकल इंटरनेट सारे के पास, दुआए कुमैल को ज़रा सर्च करके आप ज़रा पढ़ लें। दुआए कुमैल के जो अल्फाज हैं, इंसान जो है वो हैरान रह जाता है कि मौलाए कायनात किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं, किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी दुआएँ तलब फरमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ, लेकिन ये जितने भी कमालात हैं और ख़ास तौर पर जंगों के हवाले से ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है यहाँ पर, मौलाए कायनात फरमाते हैं जंगों के अंदर जब जंग का शोला बहुत ज़्यादा जब भड़क उठता था और एक ऐसा मौका आता था कि हर तरफ तलवारें और आतिशें तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पनाह ले लेते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमस्सुक कर लेते थे। तो ये सारे मकामात के बावजूद आप और एक आखिरी हदीस में आपके सामने पेश कर लूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल को बयान करते हुए ये इरशाद फरमाते कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुअमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफ़िक़, ए अली तुझसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन और तुझसे कोई बोझ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। यही वजह है कि मौलाए कायनात का अपना एक फरमान है कि लौ ज़रब्तु ख़ैशूमल मुअमिन अला अय्युबग़िदनी मा अबग़दनी, अगर मैं मोमिन के नाक के ऊपर तलवार से ज़रब लगाऊं कि मुझसे नफरत करे तो मुझसे नफरत नहीं करेगा। वलो आतैतु दुनिया बिजम्मातिहा अलल मुनाफिक अय्युहिब्बनी मा अहब्बनी, और मैं सारी दुनिया भी लाकर अगर मुनाफिक की झोली में अगर डाल दूं और उसे ये कहूं कि मेरी मोहब्बत अपने दिल में रख लें तो वो नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। जी मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात का जिक्र खैर हो रहा है, तो मैं बेरक से पहले अर्ज़ कर रहा था कि मौलाए कायनात को कर्रमल्लाहु वजहुल करीम क्यों कहा जाता है, क्योंकि वजह यह है कि तमाम सहाबा में ये शरफ सिर्फ आपको हासिल है कि आपने कभी भी एक लम्हे के लिए भी आपने कभी ये सर आपका बुत के आगे नहीं झुका, बुत की आलाइशों से पाक रहे, इसीलिए आपको कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, यानी कर्रमल्लाह, अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई, वजहुल करीम, आपके इज्जतदार चेहरे को। मौला अली का कर्रमल और पूरी दुनिया कहती है हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बड़ी प्यारी बात कही मौला अली के इल्म के हवाले से। ये इल्म हुजूर ने क्यों फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। क्या वजह है? ये इल्म कहाँ से आ गया मौला अली को? ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस से पाक है, हुजूर ने एक मरतबा मौला अली के सीने पर अपना वो यदुल्ला वाला हाथ दस्त मुबारक रखा और फरमाया अल्लाहुम्मा इमला क़ल्बहु। देखिए इमला अमला इमली इमलान का माना होता है भर देना, किसी चीज को मुंह तक भर देना। अच्छा, मुंह तक भर देना यानी उसमें मजीद गुंजाइश न रहे और फुल हो जाए। तो हुजूर ने दुआ की अल्लाहुम्मा इमला क़ल्बहु, अल्लाह, एक अफरीक का माना भी यही होता है कि तू भर दे, उंडेल दे, लेकिन इमला का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर बिल्कुल गुंजाइश बाकी न रहे। अल्लाहुम्मा इमला क़ल्बहु इल्मन व हिकमन व फ़हमन व नूरन। अब देखिए यहाँ हुजूर ने चार चीज़ें बयान फरमाई।
ایک پہلا علم، یعنی انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن علم نہ ہو اللہ تو کسی کام کا نہیں. پھر فرمایا علمن و فہمن، یعنی علم ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ فہم بھی ہو، کیونکہ علم ہو کسی کے پاس اور اس کا سمجھ ہی نہ ہو، حکمت نہ ہو کہ کون سی بات کب اور کہاں کرنی ہے. صحیح. یہ اللہ نے حضرت مولا علی کو عطا فرمایا. اور پھر حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ وہ حکمن و نورن، اور نور سے یعنی وہ باطنی نور عطا کر دے. واہ واہ اور یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات علی چاروں چیزیں المرتضیٰ موجود. آپ فرماتے تھے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو فرمایا 40 اونٹ لاد دیے جائیں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی. اور فرماتے تھے سورہ فاتحہ کی جو پوری تفسیر ہے وہ بسم اللہ کے اندر ہے، اور بسم اللہ کا جو پوری تفسیر ہے وہ نقطے کے اندر ہے، اور فرمایا وہ نقطہ میں ہوں. واہ یہ واہ مولا کائنات سبحان اللہ. علی المرتضیٰ. اور آپ فرماتے ہیں آخری بات، مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے 1000 باب سکھائے. اللہ دیکھیں ایک باب کے تحت کئی حدیثیں اور کئی روایتیں آتی ہیں اور کئی علوم فنون جمع کیے جاتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں مجھے حضور نے 1000 علم کے باب سکھائے اور میں نے ہر باب سے 1000 مزید سیکھ لیے. اللہ